international relations. Can anyone tell me why do we study theory of any subject? What is the importance of theory in order to get further knowledge of that particular subject? Can anyone answer? Okay. Yes, what is your opinion? All right. Very good. Yes, anyone from here? Okay. Any other? Okay. Yes. Okay. Yes. Anyone from this side? Okay. You all have spoken very well. Actually, the basic reason to study theories of any subject is to understand different perspectives. If we talk about especially the subject of international relations, we have got many theories, and the only purpose is to give different categories, because as you already have the idea that international relations talk about the entire world. So, when we talk about all the entire world and all that, so we have different categories, we have different schools of thought. There are many people who follow one particular school of thought, and there are many other people who follows another school of thought, right? So, do you have any idea that how many theories do we have in IR? Can you name anyone? Realism, liberalism, neorealism. Okay. Constructivism, mercantilism. So, it means there are many theories, but today our focus would be only on two theories, because if in just one day you will read all the theories, so what will happen? Things will get mixed up, and you won't be able to justify that which way to follow, right? So, for today, first of all, we will follow realism theory, right? Realism is the first theory of international relation. As you know the word realism, it means realistic approach, right? So, we talk about realistic approach. First of all, what I would like to do, first of all, I would just give you the entire concept of realism, right? And then I will go into the detail that how many scholars who have followed this theory and all the different stages that we follow in theory. Clear? All right. I have jot down different points. So, first of all, I will discuss all those points with you. So, in realism, what is the most important thing?
In realism, what is the most important thing? No. State is the principal actor. The very first thing is this, that state is the principal actor, and number two, view factor is state is unitary, actor number three, behavioral dynamic is state is rational, actor seeking to maximize its own interest or national objective, foreign policy. लिखवाती सिर्फ इसलिए हूँ कि ताकि चीज़ें ना मैं बोल के चली जाऊँगी, आप लोगों को वक्ती तौर पे समझ आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन थ्योरीज तो हर जगह से आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन उसके आपने क्या जहन में रखना होता है, मेन पॉइंट्स. व्हेन यू हैव द मेन पॉइंट्स इन योर माइंड, then it would be easy for you to write, and you will analyze basically. Number 4, national security issues. Most important, right? And balance of power, the survival of the state, anarchy, sovereignty, military strength, security dilemma, self-help system, authority, hegemony, inherent pessimism.
अच्छा, ये सब क्या चीज़ें हैं? Whenever you will read balance of power, the survival of the state, anarchy, sovereignty, military strength, security dilemma, self-help system, authority, hegemony, inherent pessimism, it means realism is going to talk about all this. These all concept comes under the umbrella of the theory realism, right? Obviously, when you talk about balance of power, you will see what you will see. Which country is having power? पावर शिफ्टिंग किस कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हो रही है, ठीक है. सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हैं आप. एंड देन सेल्फ हेल्प सिस्टम, विच नेशन इज सेल्फ सफिशेंट, विच हैज़ मोर रिसोर्सेस, ठीक है. ऐसे ही होगा. इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे आप. तो जो ये मोस्टली टर्म्स यूज़ होंगी ये सब आएंगे आपकी रियलिज्म की. Or if in any exam any question comes from all these, so it means you have to give the references of the theory of realism, right? See. Authority, hegemony and inherent pessimism. या तो गिरूंगी ना, वो कंफर्टेबल कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा मुझ में. हाँ चले, इट्स ओके. यस, हैव यू ऑल नोटेड डाउन? So state is the principal actor, and what is the view of that actor? State is a unitary actor. It means state unite people. Unitary का मतलब क्या होता है? Unite. It covers all the affairs of the country, and it manages all the resources. So actor seeking to maximize its own interest or national objective in foreign policy. Whenever we communicate with other nation, first of all we keep self-interest in our mind. Nation's interest we keep in this in our mind. ऐसे ही है कि नहीं है? किसी से बिजनेस करेंगे तो अपना फ़ायदा भी तो सोचेंगे ना, राइट? अपने रिलेशंस इम्प्रूव करेंगे तो वी सी दैट व्हाट यू कैन गिव अस. And in foreign policy, we also keep our national objective, right? So mostly terms we have already discussed. All right. Now, what is the basic assumption of realism? Please write. So the most basic assumption of So the most basic assumptions of realism reflect an inherent pessimism in the school of thought. What do you mean by inherent pessimism? Okay. Any other? पढ़ के नहीं आए आप लोग? टॉपिक तो पता था आप लोगों को. क्यों नहीं पढ़ा था? तो इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है?
देखिए, दिस क्लास शुड बी बेस्ड ऑन डिस्कशंस, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कहीं आसमान से नहीं उतरे, ये इसी तरह मैंने भी आगे पीछे से लिए हैं। तो होना क्या चाहिए क्लास में, एक्चुअली डिस्कशन होना चाहिए, एक पॉइंट छोड़ देना चाहिए और उस पर फिर गपशप होनी चाहिए। दैट इज़ हाउ यू विल लर्न। सारे टाइम तो आप लोग क्लास में सिर्फ लिखने लिखाने में और मैं लिखवाने में रहूँगी, तो व्हेन वी विल डिस्कस दोज कॉन्सेप्ट्स। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, बड़ी क्लास बड़ी जमात में जब आ जाते हैं, तो बड़ी जमात में आने का मतलब ये होता है कि टॉपिक्स पहले से बता दिए हैं, तो उस पर आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं आएंगे। और मुझे तो हो रहा है ना, मैं तो पहले सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताने में लाऊंगी, हम उसमें डिस्कशन अगली क्लास में फिर करेंगे, ऐसे ही होगा। ओके चलिए, ऑलराइट, मैं लिख रही हूँ पे, आई थिंक दैट वुड बी फाइन। एक तो आज जी पढ़ेंगे उसको, सॉफ्ट कॉपी को। उसका जवाब भी है मेरे पास, पिछले 22 साल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, स्टूडेंट भी रही हूँ और टीचर भी रही हूँ। हम खुद भी बड़ी फ़ोटो कापियाँ मांग लेते थे, मैडम पहले से दे दें, मजाल है जो क्लास में जाने से पहले वो पढ़ के गए हों, ठीक है। तो उसका मकसद ये है कि फ़ोटो कॉपीज़ भी मैं आपको दे दूँ, व्हाट्सएप भी, सब कुछ मैं अगर आ जाने से पहले आपको भेज भी देती, फिर भी आप लोगों ने इतना बिजी होना था कि आपने उसको खोल के नहीं पढ़ना था। तो इट इज़ माई स्टाइल। बहुत सारे टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं कि वो क्लास में वो आके बातें करते हैं, लेकिन मैं क्लास में सिर्फ इसी दुख से लिखवाती हूँ, क्योंकि वो उस वक्त जब लिखा जाएगा ना और पढ़ा जाएगा ना, तो वो उस वक्त पढ़ भी लिया जाएगा और समझ भी लिया जाएगा। आप 50 पेजेस नोट्स के भेज दें, पीडीएफ्स भेज दें, पीपीटीज भेज दें, वो कभी नहीं स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पिछले 22 साल से मैं पढ़ाई लड़कों को रही हूँ। एक आध साल बस ज़िंदगी में ना लड़कियों को पढ़ाया था, तो मुझे पता है व्हाट यू डू। मैं अगली क्लास में कर लूँगी, मैं भेज के देख लेती हूँ, आजमा लेती हूँ आप लोगों को। ये सही नहीं, 100% है। हमारे पास ना ट्रेनिंग के लिए टीचर्स आते हैं, तो मैं जैसे उनको लिखवाने का, मैडम आपकी चीज़ें हमें दे दें, हम घर से पढ़ के आ जाएंगे। मैंने कहा देखें, ये ज़रूर है कि मैं आपको दे दूँ, आई कैन गिव, बट द पॉइंट इज़ दिस कि जो मैं आपको क्लास में लिखवा रही हूँ ना, उस वक्त आप वो कम से कम लिख भी लेंगे और आपके गोश गुजार हो जाएगा, और फिर किसी टाइम पे आप भूल जाएंगे, और कहीं जब वो दोबारा कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको याद है कि ये कहीं ना कहीं बकवास हमने पहले सुनी थी, ठीक है। तो आई नो कि डिजिटल दौर आ गया है, पीपल दे आर मोर इन्फॉर्म्ड और सारा कुछ करते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, थ्योरी तो मैंने पिछले हफ्ते बता दिया था, मैंने टॉपिक ग्रुप में शेयर कर दिया था, पिछले हफ्ते क्लास भी नहीं हुई, फिर पढ़ के क्यों नहीं आए आप लोग? पता था ना थ्योरीज पढ़नी है, ये नहीं पता था? कितनों को पता था कि थ्योरी पढ़नी है? पढ़ के आए हैं? फिर पढ़ के आए कि नहीं, सिर्फ ये बता दें, नहीं आए ना? तो अभी जो मैं पॉइंट्स लिखवा दूंगी ना, वो पढ़ भी लेंगे, और थोड़े से आज यहाँ से जब आप लोग जाएंगे ना, तो किसी को रियलिज्म के बारे में थोड़ा सा बता भी देंगे कि क्या होता है इसमें, हम कहानियाँ क्या क्या करते हैं। वो इसके जो राइटर्स हैं वो तो मैं बाद में बताऊँगी, पहले थ्योरी क्या है ये है। आइए बात समझ में, चलें लिखें चुप करके। सो बेसिक अजम्पशंस, all right,
So the most basic assumptions of realism reflects an inherent pessimism in the school of thought. Second assumption is realists began all right. So realist begins with the prisoner's dilemma. They assume that that international politics international politics is a zero sum game. नाम सुना है कभी है? जीरो सम गेम का नाम सुना? अभी पूछती हूँ क्या होता है. And each player has a strong incentive to betray the others. कोई दूसरा मार्कर मिल जाएगा मुझे? ये भी वैसे ही. So realists begin with a prisoner's dilemma. They assume that international politics is a zero-sum game and each player has a strong incentive to betray the other. What do you understand? What do you understand by this point? जिसका लॉस होगा वो बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाएगा और दूसरे का प्लस पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आपने समझने हैं. जब ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे तो जब आप एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखेंगे तो फिर आप उसको रेलेवेंस एग्जाम्पल से कोट करेंगे. ठीक है, कंट्रीज़ का. और पेपर वही अच्छा होता है जिसमें बहुत अच्छा एनालिसिस लिखा हो और जिसमें आप एग्जाम्पल्स कोट करें. जैसे रिसर्च में करवाते हैं ना कि जी आप ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इसके रेफरेंसेस दें कि आपसे पहले कितने लोगों ने इस बारे में बात किया. तो वो उससे क्या प्लस पॉइंट होता है, उससे ये होता है कि हाँ जी चलता फिरता कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये एक बात है और बड़े ऑथेंटिक वे में इसको प्रेजेंट की जा रही है. सो व्हेन यू राइट वट एवर यू राइट, इट्स अ जनरल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू in ever your life, if you have to write something, so provide relevant evidences. वो कहते हैं ना इम्तिहान में 25 नंबर लेके तो पास हर बंदा हो जाता है, लेकिन किसी के 35 आते हैं, किसी के 37 आते हैं, किसी के 28 आते हैं, किसी के 40 आते हैं. वो क्यों आते हैं? क्योंकि हर किसी का एनालाइज करने का अंदाज डिफरेंट होता है. कुछ के जो है वो डिफरेंट बुक्स को उन्होंने कंसर्न की होंगी, तो वो क्या करते हैं, वो what do they do? They give references and they give examples. अब देखिए on this point अगर आप 2-3 कंट्रीज़ को मिसाल बना के यहाँ पे पेश कर देंगे और वो अगर आपकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल हो गई तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा? You will get good marks. जो पहली पोजीशन पे या तीसरी, चौथी, 17वीं, 18वीं पोजीशंस पे जो आते हैं स्टूडेंट CSS के, वो क्यों आते हैं? कुछ ना कुछ तो उनके कहने के अंदाज में फ़र्क होगा ना. सो बी द डिफरेंट वन, दैट्स व्हाट आई बिलीव.
एक बिल्कुल वो थोड़ी सी मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहती हूँ. हमारे ऑफिस में कुछ अर्सा पहले कुछ वो हुई थी, इवैल्यूएशंस हुए थे. तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे कि जो बस जैसे उठे उन्होंने आके एग्ज़ाम वो दे दिया, सारा कुछ कर दिया. कुछ ने बिल्कुल ही डिफरेंट पॉइंट्स लेके आए थे. अब जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो जिसका बिल्कुल यूनिक काम था, दैट गॉट द पोजीशन, और वो मेरी आई थी. ठीक है, क्योंकि आप किसी से भी थोड़ा सा अगर डिफरेंट काम करके शो करेंगे ना, तो इट विल गिव यू द गुड मार्क्स. सो सेम इज़ द केस विद कंट्रीज एज वेल. जो कंट्री थोड़ा सा डिफरेंट होता है उन्हीं का ही आ रहे होते हैं. सेकंड थर्ड पॉइंट पे आ जाइए. So realists, they also begin with the assumption that power is the means by which a state's security कुछ अरेंज हो सकता है दूसरा वहाँ का. नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग पैकेट. Security is guaranteed that power is fungible that states are unitary and rational actors and they are the primary units of international politics. So they also begin with the assumption that power is the means